Tyagi. I have completed my law from Faculty of Law, Delhi University, and currently I am practicing in Delhi High Court. And today I am here to clear your basics regarding all important laws that are frequently asked in DU entrance and other too. So let's start with the basics of crime. What is crime? See, am I audible to all of you? Can you confirm it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay, sir. okay. Thank you very much. Good evening, Samir Bhaiya. Good evening. See, try to off your mic more and try to listen out more because it will serve your purpose at the end. You will get the basic clarity, and for some time I will also tell you ki how to prepare for this entrance and what is the right approach. So, or if you have any doubt, please try to ask in the end, but try to listen me more. This is my humble request from all of you. See, so from the basics we are going to start today, and we are only going to talk about the basics of law. Ki what are the basics? I used to say every day in the class ki you should form a very good base to clear this entrance. If your pillars are strong, then no one can make you out of the row. You will clear it in one go, and it will be a cake walk for you. आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने एंट्रेंस कब में क्लियर कर लिया. So the first thing we are going to discuss is what is crime. See, the general definition is crime is anything which is punishable offense against the society. कोई भी crime जो होता है वो एक punishable offense होता है जो society के against होता है. So what is the role of IPC here? Why we have made so many laws, so many other different statutes to create a deterrence effect. हमने ये जो आईपीसी का ये जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो इसमें पनिशमेंट्स आप देखते हो, आप जब ऑफेंसेस पढ़ते हो, यू रीड सेक्शन 302. इसमें मर्डर की पनिशमेंट दे रखी है कि हाउ इफ एनी मिस्टर ए हैज कमिटेड मर्डर, सो फॉर हाउ मेनी इयर्स what punishment he will get in simple way. So the basic idea is to create a deterrence effect. What is this deterrence effect? मतलब सामने वाले के मन में एक डर पैदा करना कि आप क्राइम करो ही मत. अगर आप क्राइम करते हो तो आपको इतने साल तक की सजा मिल सकती है. दैट इज मेंशन्ड इन वेरियस sections of the IPC. So the main thing is it is a punishable offense against society because it is harming the society at a large scale only. And how our law is designed, our laws are designed to protect society from the criminals. That's why I am talking about the deterrence effect. हम अपने laws को और strict करते हैं. You all know after 2012 Nirbhaya case that was a very heinous crime that took place in Delhi. After that, so many criminal amendment in criminal laws were made out. काफी सारे amendment करने पड़े थे हम लोगों को criminal laws में. What are the amendments? हमने कौन कौन से subjects में amendment किए थे? Indian Penal Code में किया था, CRPCs Criminal Procedure Codes में किया था, एंड अदर एविडेंस एक्ट में किया था, और पॉक्सो एक्ट 2012 विच यू ऑल आर अवेयर. आई थिंक प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012. इन सब में हमने अमेंडमेंट किया था. हमने रेप का जो पनिशमेंट पहले 7 साल का था उसे हमने बढ़ा के 10 साल कर दिया. वाई हमने ये 7 साल की सजा हमने 10 साल की क्यों कर दी? क्योंकि एक सोसाइटी में डिटरेंस अफेक्ट पैदा हो कि लोग डरें कि अगर किसी इफ मिस्टर ए हैज कमिटेड द रेप तो उन्हें 10 साल की सजा होगी, पहले वो 7 साल की थी. सो द होल ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट अ डिटरेंस अफेक्ट इन द माइंड ऑफ अदर्स, कि हम सामने वाले के मन में एक डर पैदा कर सके. इसीलिए हम अपनी पनिशमेंट को और स्ट्रिक्ट बनाते जाते हैं. सिंपल इज दैट. नाउ द मेन थिंग इज कि फ्रॉम वेयर us in a layman language, if any student who is in 8th class also who is listening to me should also get it ki what sir is trying to tell. So I will give you that much easy language things. I will try to give it. See, if any person is there, what he will first do,
he will create some bad intention in his minds. वो सबसे पहले कोई गलत इंटेंशन बनाएगा कि भाई मुझे मिस्टर बी की डेथ कॉज करनी है, मुझे बी की डेथ कॉज करनी है, इसे जान से मारना है, इन सिंपल वर्ड्स. सो व्हाट इट इज, फर्स्ट ही विल फॉर्म अ मैंस रिया, उसे ही आप कहते हो गिल्टी माइंड. फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज, यू ऑल नो, देयर मस्ट बी अ ह्यूमन बीइंग. कोई एनिमल तो फॉर्म इंटेंशन करेगा नहीं. पहले वहां पे आप किसी इंसान को रखोगे, वो एक गंदा इंटेंशन बनाएगा किसी की डेथ कॉज करना और एनी अदर ऑफेंस, आइदर ही विल डू थेफ्ट और रॉबरी, एनीथिंग व्हाट ही वांट्स टू डू. सो फर्स्ट he will create a mens rea in his mind. सबसे पहले वो mens rea create करेगा, means guilty intention कि I have to kill B in the next morning. जैसे ही कल सुबह होगी मैं जाके B को मार दूंगा. तो what he has done, he has bear a bad evil intention in his mind. First thing. The second thing, he should do the act also. ये नहीं कि मिस्टर ए ने बस बोल दिया लेकिन he has not committed anything, he just went to sleep, वो सोने चले गए. He should also do some act towards the commission of an offense. उन्हें उस offense के लिए कुछ act भी करना पड़ेगा. So क्या होता है, मिस्टर ए फॉर्म करते हैं गिल्टी इंटेंशन कि कल जब सुबह होगी मैं उठूंगा and I am going to kill B. What he has done, he has formed a guilty intention. और अगर वो कल सुबह उठ के मिस्टर बी के पास जाते हैं सपोज और उनकी डेथ कॉज कर देते हैं, सो व्हाट हैपेंड, ही हैज एक्टेड टुवर्ड्स द गोल. उन्होंने गोल क्या बनाया है कि मुझे इसे जान से मारना है, तो वो एक्ट भी करते हैं और अगर सामने वाले की डेथ भी कॉज हो जाती है, यू कैन से द कमीशन स्टेज इज फुलफिल्ड. सो व्हाट ही डिड, ही इंजर्ड द अदर पर्सन, उन्होंने इंजरी भी करी. तो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू आर रीडिंग आईपीसी, आप इंजरी की डेफिनेशन हमेशा सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी से ड्रॉ आउट करोगे. एंड व्हाट सेक्शन 44 सेज, सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी सेज इंजरी, सम ऑफ यू आर थिंकिंग दैट सर इंजरी कैन ओनली बी बॉडली इंजरी, कि किसी को चोट लग गई तो आप बोलोगे कि इट इज इंजरी, बट इट इज नॉट लाइक दैट इन आईपीसी. आईपीसी में ऐसा नहीं लिखा हुआ है. आईपीसी कहता है इंजरी कैन बी रिगार्डिंग माइंड, कैन बी रिगार्डिंग बॉडी, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी. इंजरी अगर इन चारों में से किसी के लिए भी हो रही हो तो द सेम थिंग विल बी कंसीडर्ड एज अ इंजरी. सो द स्कोप ऑफ इंजरी इज वाइड. द अदर मेन थिंग इज, द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ क्राइम इज दैट इट मस्ट बी कमिटेड बाय अ ह्यूमन बीइंग. यू ऑल नो ह्यूमन बीइंग विल कमिट अ क्राइम. इन केस द क्राइम इज कमिटेड बाय एन एनिमल, its owner is subject to civil or tortious liability. So always remember there are two laws, one IPC and one is civil laws. आप उसे tortious liabilities में भी कहीं ना कहीं गिन सकते हो कि tort और crime में क्या अंतर होता है. In crime, in criminal laws you get punished, आपको punishment मिलता है. बट दिस सिविल लॉ, ये जो आप सिविल प्रोसीजर कोड्स पढ़ोगे, लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ोगे, दीज ऑल आर रिगार्डिंग कंपनसेशन. यहाँ पे आप कोर्ट्स में जाते हो और कंपनसेशन डिमांड करते हो, यहाँ पे आपको सजा नहीं मिलती. यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट कंपनसेशन कि अगर किसी के डॉग ने किसी को बाइट कर लिया है तो वहां पे द अदर पर्सन विल कंपनसेट हिम टू. सो दीज एक्ट्स विल गो इन सिविल और टॉर्टियस लायबिलिटी, एज सिंपल एज दैट. बट द अदर थिंग इज कि what are the stages. Now let's move to the stages कि अगर कोई भी क्राइम कमिट होगा it will create, there are so many stages ना, not like that you suddenly committed a murder, it's not like that, there will be certain stages. First you will form a intention. सबसे पहले आप एक intention carve out करोगे, उसके बाद आप प्रिपरेशन करोगे. आइदर यू विल बाई अ गन, आप या तो बंदूक खरीद के लाओगे या तो आप कहीं किसी मेडिकल स्टोर से जहर खरीद के लाओगे अगर आपने किसी को मारने की प्लानिंग बना रखी है. सो ये जो आप बीच में ये जो काम कर रहे हो, आप शॉप पे जा रहे हो, पॉइजन खरीद रहे हो, कहीं आप गन शॉप पे गए, आपने वहां से गन खरीदी, दीज आर द प्रिपरेशन पार्ट. नाउ मिस्टर ए हैज जस्ट शूट द बुलेट ऑन बी, यू कैन से उन्होंने बी पे गोली चला दी, बट द बुलेट मिस, वो थोड़ा सा नीचे झुक गए और बुलेट ऊपर से निकल गई. सो व्हाट इज दिस, दिस इज अटेम्प्ट. व्हाट ही हैज डन, सर्टेन एक्ट आफ्टर प्रिपरेशन, उन्होंने प्रिपरेशन के बाद कुछ एक एक्ट कर दिया, बट क्योंकि वो नीचे झुक गए
बुलेट उनके साइड से निकल गई, उनकी डेथ कॉज नहीं हुई, दैट कमीशन फेल्ड। जब भी कमीशन फेल हो जाता है, इन सिंपल टर्म, आप जिस चीज के लिए आपने इंटेंशन बनाई थी, अगर वो फेल हो गई तो वो किस स्टेज पे है? वो अभी भी अटेम्प्ट के स्टेज पे रुक गई, इट इज नॉट कमीशन। अगर वो बुलेट सामने वाले को लग जाती और उनकी डेथ कॉज हो जाती, सो इट इज कमीशन। आप घर से निकले थे इंटेंशन लेके कि मैं तो मिस्टर बी की डेथ कॉज करूंगा, एंड यू हिट अ बुलेट ऑन हिज चेस्ट, द पर्सन डाइड ऑन द स्पॉट। सो व्हाट इज दिस? दिस इज कमीशन। आपने प्रिपरेशन भी हो गई, अटेम्प्ट भी कर ली और उनकी डेथ भी हो गई, और आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था? उनकी डेथ कॉज करना। बट इफ द सेम पर्सन डज नॉट डाई, अगर उसकी डेथ नहीं होती, तो आप बोलते अभी भी आप अटेम्प्ट के स्टेज पे ही अटके हुए हो, आपने कमीशन पूरा नहीं किया, इन सिंपल वर्ड्स। So always remember these things कि any person will have to pass out these stages अगर एक offense के crime तक, एक particular point तक पहुंचना है तो। And the simple I am going to give you a simple formula how to remember this. What we are reading? We are reading Indian Penal Code. But for a moment, just think, now we are reading Indian Penal Authentic Code. I am repeating, just assume that you are reading Indian Penal Authentic Code, means IPAC. This is the formula. So you can easily learn the stage like intention, preparation, attempt and commission. All stages you can easily learn by this formula, Indian Penal Authentic Code. You will never forget it, I think. Now, there are some things विच यू आर इन द प्रिपरेशन स्टेज ऑल्सो, कि अभी भी आप प्रिपरेशन स्टेज पे हो, लेकिन तभी भी वो एट द सेम मूवमेंट वो क्राइम बन जाता है। उसके लिए आपको अटेम्प्ट करने की भी जरूरत नहीं है। आप अगर प्रिपरेशन के स्टेज पे हो तो वहीं पे यू कैन से यू हैव कमिटेड अ क्राइम, और आपको वहीं पे पनिश किया जाएगा। सो व्हाट आर द एक्सेप्शंस? सो ऑलवेज रिमेंबर दिस एक्सेप्शंस ऑल्सो, कि किसी भी क्राइम के एक्सेप्शंस क्या हो सकते हैं, कि अगर केवल और केवल मैंसरिया है और आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एट द सेम मूवमेंट आपको वहीं पे पनिश कर देंगे। इट इज इमटेरियल आइदर यू रीच द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन और नॉट। सो दीज आर द, आई एम गोइंग टू रीड इट फॉर यू। प्रिपरेशन ऑफ वेजिंग वॉर, किसी सरकार के खिलाफ कोई वॉर खड़े करना, या इस तरीके से कोई आप इन दिल्ली इफ यू प्लांट अ बॉम्ब, आप वहां पे कोई बॉम्ब प्लांट कर देते हो या कोई ऐसी चीज करते हो जो सरकार के खिलाफ हो, सो अगर आप उसकी प्रिपरेशन ही इंडिया में किसी ग्रुप के साथ कर रहे हो, तो इट इज पनिशेबल एट द वेरी स्टेज, आपको वहीं पे पनिशमेंट दे दिया जाएगा। इट इज नॉट दैट कि आपके सारे इंटेंशन देखे जाएंगे। अगर इट इज प्रूफ कि यस दीज पीपुल्स आर प्लानिंग टू प्लांट अ बॉम्ब इन सीपी और यू कैन से इन एनी मेट्रो, अगर ये केवल आपके कॉल रिकॉर्ड से, ये सब चीजों से साबित हो जाता है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एट द सेम मोमेंट यू विल बी चार्ज with this section 122 IPC. Now the other thing is preparation of waging war or depredation in other friendly country. See, what is this? This is if any country whose India relation is very good, you can say, like Russia, US, जिससे हमारे बहुत दोस्ताने संबंध है, लेकिन आपने वहां पे जाके कोई नुकसान कर दिया, उनके खिलाफ कोई वार छेड़ दी, then also you will be liable under section 126. Now the third point is preparation for counterfeiting of coins. Means अगर आप अपने घर में नकली सिक्का बनाने वाली मशीन लेके आते हो, और अगर वो मशीन आपके घर में केवल पाई जाती है, इट इज इमटेरियल कि आप उस समय सिक्के बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। अगर इस तरीके से प्रूव हो जाता है कि आपके घर में नोट छापने वाली या सिक्के बनाने वाली मशीन अवेलेबल है, एट द सेम मूवमेंट आपको वहीं पे पनिश कर दिया जाएगा। इट इज नॉट दैट आप अटेम्प्ट किया या नहीं किया, अभी भी आप उससे सिक्के बना पाए या नहीं बना पाए, इट इज इमटेरियल। अगर आप उसकी प्रिपरेशन भी कर रहे हो कि आपने वो सिक्के, काउंटर फीटिंग ऑफ कॉइन्स और गवर्नमेंट स्टैम्प्स, अगर आपने इस तरीके की चीजें अपने घर में रख रखी हैं और अगर वो पकड़ी जाती हैं, तो मियर प्रिपरेशन ऑफ द काउंटर फीटिंग ऑफ कॉइन्स इज पनिशेबल बाय लॉ। आप ये प्रूव नहीं करेंगे दूसरे लोग कि भाई आपने वो सिक्के छापे या नहीं छापे। सो
प्रिपरेशन फॉर कमिटिंग डकैती, सी दिस इज द ओनली ऑफेंस जहां डकैती अगर आप कर रहे हो तो इट्स ऑल स्टेजेस आर पनिशेबल अंडर आईपीसी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. It is mentioned in section 399 of IPC. Even if 5 persons, कोई 5 लोग चौराहे पे खड़े हुए हैं और वो डकैती की प्लानिंग कर रहे हैं कि मिस्टर बी के घर में कल डकैती डालेंगे, और अगर मियर प्रिपरेशन में ही पुलिस उन्हें वहां से उठा के पकड़ के ले जा सकती है और वहां पे उन्हें पनिश कर दिया जाएगा, क्योंकि सेक्शन 399 कहता है कि इवन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कमिटिंग डकैती, you will be charged with this section and you will be punished also. Now the very important thing is, and they ask you in the exam also, see, burden of proof. You all know and you all have heard also कि कभी भी किसी के घर में मर्डर हो जाता है, चोरी हो जाती है या डकैती हो जाती है, तो who is the one who is proving the same? वहां पे एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है. जब पुलिस एफआईआर लिखती है, देन द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज प्रेजेंटिंग द केस इन फ्रंट ऑफ जज और यू कैन से मजिस्ट्रेट. सो व्हाट आर दीज थिंग्स? बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस ऑल्सो. ज्यादातर केसों में आप देखते होंगे जो मर्डर किसी के घर में हो गया तो वहां पे देयर इज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वहां पे उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिलेगा जो उनका केस रख रहा होगा कोर्ट में जाके. बट द पर्सन हु हैज कमिटेड द मर्डर, लेकिन जिस पर्सन ने वहां पे खून किया है उसे गवर्नमेंट कोई भी यू कैन से एड प्रोवाइड नहीं करेगी. वहां पे एक्यूज को अपना खुद का वकील करना पड़ेगा. बिकॉज व्हाट इज द लॉजिक? द सिंपल लॉजिक इज, स्टेट इज सेइंग प्लीज फॉलो द रूल्स. जो भी हम लॉ बना रहे हैं भाई उन्हें फॉलो करिए. एंड व्हाट स्टेट इज सेइंग, उसके बदले में स्टेट आपसे क्या कह रही है? अगर आप उनके बनाए हुए सारे लॉ फॉलो कर रहे हो कि भाई हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, वी विल ग्रांट यू प्रोटेक्शन, और हम आपके लाइफ को थ्रेट होने नहीं देंगे, देयर इज पुलिस, देयर इज अलग अदर मशीनरी ऑल्सो, दोज हु विल प्रोटेक्ट यू, जो आपकी कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन करेगी. सो यू ऑल नो पुलिस को जो हम कहते हैं कि दीज आर द पुलिस, तो दे आर रिप्रेजेंटिंग द स्टेट ओनली. दे आर द इम्प्लीमेंटेशन बॉडी यू कैन से, जो सारे के सारे ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट कराते हैं ग्राउंड पे. सो पुलिस किसे रिप्रेजेंट कर रही है? स्टेट को ही रिप्रेजेंट कर रही है. सो इट्स द ड्यूटी ऑफ द स्टेट कि वो यहाँ पे सोसाइटी में क्राइम नहीं होने दे, और अगर हो रहा है तो उस फैमिली को एड प्रोवाइड करे, मतलब मदद दे. बट द पर्सन हु इज डूइंग द क्राइम, जिसे आप कहते हो एक्यूज्ड, कि जो एक्यूज्ड होता है, एक तरफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, यू कैन से इन वन वर्ड, अदर इन सिंपल वर्ड, देयर इज वन एक्यूज्ड एंड देयर इज वन विक्टिम. इट्स राइट वर्ड टू यूज विक्टिम. देयर इज वन विक्टिम जिसके साथ ये कुछ हुआ है, एंड देयर इज वन एक्यूज्ड. सो फॉर विक्टिम स्टेट इज ऑलवेज देयर. स्टेट विक्टिम को हमेशा प्रोवाइड करेगा जितनी भी मदद हो सकती है. बट एक्यूज्ड शुड गो बाय हिज ओन थिंग्स, अगर उसे अपना खुद वकील करना पड़ेगा. बट देयर इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन. अगर वो जो एक्यूज्ड है वो ही इज वेरी, यू कैन से ही हैज नो मनी, he is very not good earner, he is the sole earner of the family, तो वहां पे there is an article which is going to help him, or you can say constitution is going to help him, means free legal aid. There is an article 39A which is talking about free legal aid, कि अगर भाई कोई भी है जो अपना वकील नहीं कर पा रहा है, either he is accused also, तो वहां पे सरकार जो है वहां पे उसे कोर्ट, आइदर गवर्नमेंट और कोर्ट विल प्रोवाइड हिम अ लॉयर एंड एडवोकेट बाय हिज चॉइस, और ही विल प्रोवाइड बाय इट्स ओन ऑल्सो, कि बिकॉज यू आर वेरी लेस अर्नर, सो द कोर्ट विल हेल्प हिम अंडर आर्टिकल 39A विच इज टॉकिंग अबाउट फ्री लीगल एड. वो वहां पे एक्यूज को भी अगर उसके पास इतने पैसे नहीं है मदद करने लेने के लिए, तो वहां पे उससे उसकी भी मदद की जाएगी. बिकॉज वी हैव टू सीक द जस्टिस. हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? कि भाई हम जस्टिस तक पहुंच जाएं, और अगर हमने उसको वकील ही नहीं दिया तो वहां पे जस्टिस कहां हुई? उसे तो किसी ने रिप्रेजेंट ही नहीं किया उसका केस. तो द सिंपल लॉजिक इज कि justice should be done. It's not like that it is seen to, means justice should also be seen to be done. Justice होता हुआ दिखना भी चाहिए, ये नहीं कि केवल और केवल justice हो गया.
This is the main concept, but the main thing that I want to tell you and important for the exam point of view, what is the burden of proof? See, burden of proof, if anyone has opened his mic, please off it. See, what is the burden of proof? The burden of proof, there can be two questions asked in your paper, and I am going to discuss those two questions. If the question is like this, ki what in means in general sense, what is the general principle? So the general principle is that prosecution has to prove the case, but if your case is falling under the general exceptions which is given under chapter 4 of the IPC, तो वहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे शिफ्ट हो जाएगा? भाई वहां पे डिफेंस पे बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। एंड ये कौन बोल रहा है? ये आपका सेक्शन 105 ऑफ एविडेंस एक्ट बता रहा है। सो लेट्स रीड इट। प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव इट्स केस beyond reasonable doubt, but it's not like that for the accused. There is no need to prove the case beyond reasonable doubt. He has to simply prove his case कि भाई प्राइवेट डिफेंस की सिचुएशन बन रही थी, एंड इफ द जज इज सेटिस्फाइड ही विल प्रोवाइड यू द डिफेंस, दैट्स ऑल। लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ये ऑब्लिगेशन है उस पे, ही हैज टू प्रूव हिज केस beyond reasonable doubt. It is very important term. So the first important question for you is, in which chapter general exceptions are given? ये अभी 2020 में ही पूछा गया था मेरे ख्याल से। So the answer is, it is mentioned in chapter 4 of the IPC. फिर the second question is, what is the general principle? The burden of proof generally lies on whom? So your answer is public prosecutor. It's the prosecutor who will prove the things generally. But if your situation, if your case is falling under the general exceptions, means from section 76 to 106, then the burden of proof will shift from prosecutor to the defense. अब यहां पे अगर आप बचाव ले रहे हो कि yes, I have committed the murder, but I have committed the death is a good, right word, but my case is falling under the general exceptions. Okay, so यहाँ पे आपको प्रूव करना पड़ेगा, because chapter 4 Indian evidence of section 105 of evidence act is saying like this only, कि to whom the burden of proof lies. This is the 2 or 3 important question that can come. So in simple sense, there is 1 minute, there is a accused of murder alleges that by reason of unsoundness of mind he did not know the nature of the act. The burden of proof is on A. यहाँ पे मर्डर के लिए एक्यूज था और वो कहता है कि मैंने पागलपन में डेथ कॉज कर दी, और वो जैसे ही बोल रहा है कि भाई मैंने तो इसे पागलपन में मारा, तो ये प्रूफ कौन करेगा? ये सरकारी वकील प्रूव नहीं करेगा, यू कैन से पब्लिक प्रोसिक्यूटर। द पर्सन ए जो कह रहा है कि सर मैंने तो इसे पागलपन में मारा है, उसे ही प्रूव करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू लीगल एविडेंसेस कि हाँ भाई उसने डेथ कॉज करी है, वो उस समय एट द सेम टाइम ही वाज अनसाउंड। ऑलवेज रिमेंबर, बिकॉज द सिचुएशन इज फॉलिंग अंडर जनरल एक्सेप्शंस। जनरल एक्सेप्शंस में एक्यूज्ड को प्रूव करना पड़ता है कि फॉर टेकिंग बेनिफिट कि आई हैव किल्ड समवन while taking the defense of general exceptions. So they are writing the burden of proof is on A, क्योंकि यहाँ पे अगर A को मर्डर के लिए आरोपी आपने बनाया है और वो कह रहा है कि भाई मैंने तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में डेथ कॉज कर दी थी, तो यहाँ पे प्रूफ भी मिस्टर A को ही करना पड़ेगा। एज सिंपल इज दैट। नाउ द अदर थिंग इज, ignorance of law is no excuse. It is very important for the examination point of view. See what the judge is saying. The person is saying something, he is saying I don't know the law, he is saying ignorance of law is no excuse, dummy. He is saying like this to the other person. What does that mean? You cannot say I don't know the law. You have violated the traffic rules. वहां पे रेड लाइट थी और आपने उसे जंप कर दिया, और जब पुलिस वाला आपका चालान करने आया तो आप उससे बोलते हो कि नो
I am from this rural areas or any like such backward area in India. I don't know the law. I have never read any laws from the book. How you can charge me? आपने मुझे पढ़ाया भी नहीं ना लिटरेट किया और आप मेरा यहाँ पे चालान काट रहे हो. Is that justified? So the law says it is your obligation, it is your duty to know the law. So यहाँ पे एक प्रिंसिपल रखा गया है कि भाई इग्नोरेंशिया नॉन एक्सक्यूजेट, वो आपको पता भी है, वो जो मेन एक मैक्सिम है, यू ऑल आर अवेयर ऑफ द सेम, कि इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नो एक्सक्यूज. हम लॉ के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं देंगे, बट फैक्ट के लिए हम एक्सक्यूज दे सकते हैं. ऑलवेज रिमेंबर एंड रिमेंबर द टू इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स ऑल्सो. द फॉर द फैक्ट द मैक्सिम इज ignorantia facti doth excuse it, means ignorance of fact is excuse, but ignorantia juris non excusat. These are the very two important maxims for the your entrance point of view. Means ignorance of law is not excusable at all. आप कुछ भी क्राइम करके ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरे को लॉ नहीं पता. वहां पे प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि आपको लॉ पता है और आपको पता भी होना चाहिए. बट इफ देयर इज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यस यू कैन बी एक्विटेड. आप जनरल एक्सेप्शंस का बेनिफिट ले सकते हो और आपको वहां पे छोड़ा भी जा सकता है. नाउ लेट्स कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्राइवेट डिफेंस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज प्राइवेट डिफेंस, वेयर इट इज मेंशन्ड. It is mentioned in chapter 4 of IPC, you all know, and it starts from section 96 to 106 of IPC. So I am going to give you the crux in 5 simple points कि if any question come in your paper, what you have to examine while taking any factual situations. The first thing, when does this right starts, how much time it stays with you and when it finishes. मतलब ये राइट आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट कब शुरू होता है, कब तक आपके पास रहता है और कब खत्म हो जाता है. आफ्टर दैट यू कैन नॉट एक्सरसाइज इट, और अगर आप उसके बाद एक्सरसाइज करोगे तो यू विल बी पनिश्ड. एज सिंपल एज दैट. अगर आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म हो गया है, उसके बाद भी आपने किसी की डेथ कॉज कर दी, सो लॉ इज गोइंग टू पनिश यू फॉर श्योर. नाउ what I have said you, when right of private defense starts, ये situation कौन सी होगी? The simple answer is when the reasonable apprehension of danger to the body starts. जैसी आपके एक मन को एक डर लगने लगेगा, यू कैन से रीजनेबल एप्रहेंशन ऑफ डेंजर आपकी बॉडी के लिए स्टार्ट हो जाती है कि ही इज गोइंग टू किल मी. सो इट्स अ नेचुरल फोर्स. वो पता चल जाता है कि यस यहाँ पे मुझे खतरा है और यहाँ पे मेरा प्राइवेट डिफेंस का राइट शुरू हो चुका है. सो द सिंपल आंसर इज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट्स व्हेन अ रीजनेबल एप्रहेंशन ऑफ द बॉडी टू द डेंजर, एनी डेंजर स्टार्ट्स. एंड हाउ मच टाइम इट स्टेज, जब तक वो खतरा आपके ऊपर है आप तब तक प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो. द मोमेंट रीजनेबल एप्रहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी फिनिशेस, अब नहीं है डेंजर, आफ्टर दैट इफ यू विल एक्सरसाइज यू विल बी पनिश्ड, और आप उसके बाद राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते. द सिंपल एग्जाम्पल इज देयर आर 2 to 3 पीपुल्स जो रॉबरी करने के पर्पज से मिस्टर ए के घर में घुसते हैं. जैसे ही उन्होंने मिस्टर ए के जो वॉल होती है उससे जंप करके जैसे ही वो अंदर उनके एरिया में आए, वहां पे ही उस फैमिली को, मिस्टर ए की फैमिली को, यू कैन से रीजनेबल एप्रहेंशन ऑफ डेंजर स्टार्ट हो चुका है. इन सिंपल वर्ड यू कैन से, एंड ऑल रॉबर्स आर हैविंग गन्स इन हिज हैंड्स. सबके पास एक एक पिस्टल होती है. तो उस फैमिली को, जो मिस्टर ए की फैमिली है, उसे रीजनेबल एप्रहेंशन कब स्टार्ट हुआ? जैसे ही वो तीनों के तीनों बाउंड्री वॉल से जंप करके अंदर आए. द मोमेंट दे रॉब द हाउस, जब तक वो रॉबरी कर रहे थे तब तक प्राइवेट डिफेंस का यू कैन से इट्स देयर, आप एक्सरसाइज कर सकते हो. द मोमेंट दोज ऑल थ्री, उन्होंने सारी चोरी करी, सब कुछ लूटा और वो लूट के आउटसाइड जंप कर गए घर के. द मोमेंट दे जंप आउटसाइड, नाउ यू कैनॉट किल देम.
ये नहीं कि आप अपनी बाइक स्टार्ट करके जाओ और आपने उन्हें दौड़ा के पीछे से गोली मार दी. इट इज नॉट जस्टिफाइड, इट इज अ टाइप ऑफ रिवेंज. और हमेशा याद रखना, प्राइवेट डिफेंस में रिवेंज की कोई भी जगह नहीं है. while killing anyone or while exercising the right of private defense, you cannot take revenge. आप किसी से बदला ले नहीं सकते. So the very simple answer to the same is कि right of private defense जो example मैंने आपको दिया कब खत्म हो गया? The moment those 4 robbers jump outside the house after committing robbery. जैसे उन्होंने रॉबरी कंप्लीट करी और वो घर से कूद गए, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर एंड्स देयर. वहां पे रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर खत्म हो गया, तो वहां पे आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो. नाउ द अदर थिंग इज, प्राइवेट डिफेंस इज ऑलवेज रिलेटेड टू बॉडी एज वेल एज प्रॉपर्टी. आप बॉडी की भी रक्षा कर सकते हो अपनी, और प्रॉपर्टी की भी रक्षा कर सकते हो. एंड अगर मैं और जस्टिफाई करूं, यू कैन प्रोटेक्ट योर ओन बॉडी. आप अपनी बॉडी को तो प्रोटेक्ट कर ही सकते हो. अगर कोई स्ट्रेंजर रोड पे भी जा रहा है, आप उसकी बॉडी को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो. यू कैन आइदर प्रोटेक्ट योर ओन बॉडी और द बॉडी ऑफ अदर पर्सन, और यू कैन प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी एंड द प्रॉपर्टी ऑफ अदर पर्सन्स ऑल्सो. सो दिस मच वाइड स्कोप प्राइवेट डिफेंस हैज in its ambit, you can say. Now the third important point is proportion of force use. How much force you are using is very much material. कि suppose Mr. A is hitting you with plastic bat, Mr. A ने आपको प्लास्टिक के बैट से मारा, so it is unjustified कि आप उन्हें आयरन रॉड से मारो. it is not a force you are using in proportion. हर सपोज मिस्टर ए इज फायरिंग ऑन यू विथ पिस्टल, मिस्टर ए ने आप पे गोली चलाई, सो यस मिस्टर बी भी फायर वहां पे शूट कर सकते हैं, वो भी गोली चला सकते हैं. सो फोर्स यूज्ड शुड बी प्रपोर्शनल, एक्सीड नहीं होनी चाहिए कि समवन हैज हिटेड यू विथ प्लास्टिक बैट और आपने उसे आयरन रॉड से मार के उसकी डेथ कॉज कर दी. द फोर्स यू आर यूजिंग मस्ट बी प्रपोर्शनल. एंड द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिकोर्स टू पब्लिक अथॉरिटीज. कि अगर आपके पास मौका है कि आप पब्लिक पुलिस के पास कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, यू कैन कॉन्ट्रैक्ट एनी पुलिस पर्सनल, तो इट इज योर फर्स्ट ड्यूटी टू पिंग देम, और आप उन्हें फोन करो और आप उनसे मदद मांगो, बिकॉज दे आर हियर टू हेल्प यू ओनली. दे आर द स्टेट मशीनरी. पुलिस का काम क्या है? टू प्रोटेक्ट यू, टू प्रोटेक्ट द जनरल पब्लिक. तो इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने कानून को अपने हाथ में ले लिया. आप सबसे पहले वहां पे जाके पीसीआर को फोन करोगे इफ देयर इज अ सफिशिएंट टाइम, एंड यू ऑल आर स्मार्ट इनफ टू नो व्हाट इज सफिशिएंट टाइम. आई हैव आल्सो गिवन यू अ एग्जांपल इन माय प्रॉपर क्लास, एंड यू ऑल नो रिगार्डिंग दैट, आई होप सो, कि एक प्रॉपर टाइम को आप क्या मानोगे कि दिस इज अ प्रॉपर टाइम. सो the other thing is, I have mentioned you the 4 important basics कि if there is a time to recourse to public authorities, आपके पास टाइम है पुलिस के पास जाने का, तो आपको सबसे पहले वहां जाना है. इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने पहले उसे मार दिया और उसके बाद आप पुलिस के पास गए. सो इफ देयर इज अ टाइम टू रिकोर्स, यू शुड फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट द पुलिस पर्सनल्स एंड then exercise your duty, you can say. Now what section 96 is saying? See, section 96 is saying things done in private defense. आप जो भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, it is not an offense at all. If you are doing anything while exercise your right of private defense, it is not an offense. ये आपका section 96 of IPC बोल रहा है. Now I am going to give you certain situations. Means in section 100 of IPC there are 7 situation कि जहां आप किसी को भी डेथ कॉज कर सकते हो if there is a threat regarding body. अगर आप पे किसी बॉडली इंजरी का खतरा है, anything which is related to body. लेकिन सेक्शन 103 कह रहा है कि आपको कहीं भी आप डेथ कॉज कर सकते हो अगर आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड थ्रेट्स हैं. सो दे आर गिविंग यू सिचुएशन लाइक such an assault which may reasonably cause the apprehension that death will be the consequence. कि आपको लग रहा है कि there is a reasonable apprehension of death, first thing. Other thing, there is a reasonable apprehension of grievous hurt.
Thirdly, they are saying when there is a assault with the intention of committing rape, then also you can kill any person. Fourthly, when there is an intention to gratifying unnatural lust, that section 377 I think is talking about. Now, fifthly, intention of kidnapping or abduction. In this situation also you can kill anyone. And the sixthly is when there is a wrongful confinement, when some person has blocked you in a dark room और उसने आपको हर तरीके से चारों डायरेक्शन आपके बंद कर दिए हैं और उसने एक बंद कमरे में आपको ताले में रख रखा है. So yes, their law give you the opportunity to kill that person. You can cause the death also. Now, what the other thing is section 103, which is saying about प्रॉपर्टीज. ऐसे कौन कौन से केसेस हैं प्रॉपर्टीज के जहां आप डेथ कॉज कर सकते हो. व्हेन सम ग्रुप ऑफ गैंग्स यू कैन से इज कमिटिंग रॉबरी, आपके घर में रॉबरी कर रहे हैं, बट वी हैव टू एग्जामिन द सर्कमस्टेंसेस ऑल्सो कि उन सबके हाथ में लीथल वेपन्स हैं, रात को 2 बजे का टाइम है. सो द सिचुएशन शुड बी लाइक दैट. सेकेंडली, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट. द थर्ड थिंग इज mischief by fire on any building. See what you mean by the term mischief. Mischief का मतलब नुकसान कर देना in simple sense. किसी की वैल्यू, एक वैल्यू मेरी फोन की इस समय वैल्यू है 20,000, तो आपने मेरी फोन की वैल्यू को डिमिनिश कर दिया और उसे तोड़ के 5,000 रुपए का फोन बना दिया. So what it is? It is mischief. You have diminishes the value of any item. It is also included in mischief. So mischief by fire committed on any building, tent or vessel, which building, tent or vessel is used for human dwelling. Human dwelling का मतलब क्या होता है कि सिंपल सा एक घर जिसमें ह्यूमन बीइंग रह रहे हो, अगर आपने उसमें आग लगा दी या एनी सच टाइप ऑफ वेसल्स टेंट में, तो देयर यू द अदर पर्सन कैन किल यू ऑल्सो. फोर्थली, theft, mischief or house trespass under such circumstances as reasonably cause apprehension that danger or grievous hurt will be the consequence. अगर कोई भी सिचुएशन है आपके पास, अगर आपको लगता है कि मेरी डेथ, देयर इज अ थ्रेट ऑफ डेथ and grievous hurt, I am going to give you the very important point. Listen to me very carefully. पूरे प्राइवेट डिफेंस में आप दो चीज याद रखना कि इफ देयर इज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, दीज टू टर्म आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको लगता है कि मुझे ग्रीवियस हर्ट हो सकता है या मुझे डेथ कॉज हो सकती है, तो लॉ गिव यू अ राइट टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. आप वहां पे किसी की भी डेथ कॉज कर सकते हो अगर आपकी बॉडी को इस तरीके का खतरा है कि देयर इज अ चांस ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट. बट इफ देयर इज अ सिंपल हर्ट, आपके थोड़ी सी हाथ में लग गई, you cannot kill the other person by shooting him. It is not justified. So the law is saying only death and grievous hurt. So in simple crux, if I want to say ki what is the crux, so private defense is a right available to a person to save himself from the offender, may extend even to the cause death offender in certain circumstances, and even extended to cause harm to an innocent person. Suppose it's not about emotional, if any unsound person is there, if any child, 6-year child is in front of you and he is going to shoot you, वो ऑलरेडी आपके ऊपर इतना मैच्योर चाइल्ड है 7 ईयर का कि एक गोली चला चुका है आपके ऊपर. सो द लॉ गिव यू द राइट टू किल दैट चाइल्ड ऑल्सो. यहां पे आपको कोई भी सिचुएशन एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है कि आप वहां पे इमोशनल हो जाओ या आप कुछ एक्सेप्शंस कार्व आउट कर लो. देयर कैन बी एनी मैन, आइदर ही इज अनसाउंड माइंड, आइदर ही इज इंटॉक्सिकेटेड और आइदर ही इज चाइल्ड. इट इज इमैटेरियल एट ऑल. आपको कोई सिचुएशन यहाँ पे देखनी ही नहीं है. अगर आपके बॉडी को ग्रीवियस हर्ट और डेथ का खतरा है, यू कैन किल दैट पर्सन ऑन द स्पॉट. लॉ अलाउज यू, ऑलवेज रिमेंबर दैट, कि आप वहां पे सिचुएशन एग्जामिन करने मत बैठ जाना कि यार यहाँ पे तो 6 साल का बच्चा है, हम इस पे कैसे गोली चला सकते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. दे आर सेइंग एनी पर्सन हु इज आइदर इंटॉक्सिकेटेड, आइदर ही इज वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेटेड और इनवॉलेंटरली. अगर आपको वहां पे खतरा है
तो आप वहां पे अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो. नाउ द अदर थिंग इज, see, there are two basic things